Okay, hello friends, welcome back to the channel Our New Source, and today we are going to start the new lecture regarding to the photosynthesis, and it is the lecture number 4 or part 4 of photosynthesis. And here we have to discuss about the light reaction as well as the dark reaction. So in the previous class I have given you a little bit question that you have to find out the molecular structure which is appearing at here, that whether it is photosystem A or 2, which one is the photosystem A or 2, and this is actually the molecular structure. And here you can see this structure is the photosystem 2, and this one is photosystem 1. So in the previous class also we have discussed about what are the antenna pigment and what the absorption spectrum, and we have already discussed about what are the comparison, means what are the steps of light reaction and dark reaction. Now light reaction steps are light absorption, splitting of what molecule, release of oxygen, then synthesis or formation of ATP and NADPH as assimilatory power. The NADPH is also known as NADPH2, and the related story I have said to you that how to remember such things. Next we have already discussed about the dark reaction or the biochemical phase. What are the steps of such processes? One is carboxylation, then reduction and regeneration. But in details today we have to learn what is photosynthesis. So let me write few things regarding to the we have to learn about light reaction, okay, which is a photochemical phase. Let me write few things regarding to this chapter, then we will proceed further. Okay, first thing is the light reaction is also known as, let me give the heading of this chapter. और हाँ आपण माने बधे चाहिले वीडियोटी को स्पीड करके देखि परिबे, कहीं ना लेखा पे बहुत समय जाउची, आपण माने चाहिले मध्य आको स्पीड करके देखि परिबे. Light reaction, which is otherwise known as photochemical reaction, it is also known as Hill reaction. It is also known as Hill reaction. Then, and it is the first or initial step of photosynthesis. Next one is, it occurs in where? Now grana of the chloroplast. Grana is a single N, grana of chloroplast. This is the site of photosynthesis, sorry, light reaction. ग्राना आपण मन को जाना अछि जे एटा क्लोरोप्लास्ट हेले ता मैट्रिक्स टा हम कोन कहबा, मैट्रिक्स माने जो मीडियम बा फ्लूइड ताको हम कहबा ग्राना, सॉरी ताको हम कहबा स्ट्रोमा, सॉरी एक्चुअली से मैट्रिक्स को हम कहबा स्ट्रोमा. आ से मैट्रिक्स रे थिबा कोन ना ए भले जो स्ट्रक्चर थाए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअली दिस स्टॉक्स आर मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड, and this stalk like structures are, each stalk माने गोटे थाको हम कोन कहबा ग्रानम, and its plural form is grana. and से ग्राना रे कोन हुए ना photosynthesis रो फर्स्ट फेज जोटा कि लाइट रिएक्शन सेटा कंडक्ट हुए. and stroma जोटा कि मैट्रिक्स, आमे ताको मैट्रिक्स कहबा कोन ना स्ट्रोमा, आ से स्ट्रोमा रे डार्क रिएक्शन हुए. ठीक अछि. नेक्स्ट, it is completely light dependent process. Then dependent process. Next one is the what another important thing is the pigment system of quantasome. Pigment system of quantasomes are required to trap the sunlight. These things are very most important. Then another thing is electron transport chain is needed to use light energy for the formation of ATP, and this electron transport chain is present in between two photosystem. One is photosystem 2, another one is photosystem 1, and the electron transport chain carries the electron from photosystem 2 to photosystem 1 in downhill direction. Downhill माने कि higher redox potential रो lower redox potential level को ट्रांसपोर्ट करके ना नहीं जाए. आ बहुत गुडे सेठी कौन था ना प्रोटीन कैरियर, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैरियर वगैरह थांती, साइटोक्रोम स्पेशली प्रेजेंट थांती. नेक्स्ट
the photochemical phase involves all the steps that I have said. First one is the oxidation or photolysis of water. Next step रे लिखिदबा जे स्टेप गुडा कोन जोटा हम फर्स्ट कहथिली कोन ना absorption of light जोटा थिला. नेक्स्ट थिला photolysis means breakdown of water. नेक्स्ट थिला liberation of oxygen or release of oxygen. Next थिला formation of ATP or NADPH2. Actually ATP जो प्रोसेस रे फॉर्मेशन हुए ता कहती फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस रे ATP बने. इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट कोन ना फोटोफॉस्फोराइलेशन गोटे वर्ड आपन जानिबे. से फोटोफॉस्फोराइलेशन कोन प्रीवियस क्लास रे मधे कहिथिली तथे पुणी आउथरे एठी दोहराई दउची जे फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP by using some inorganic phosphate, and you have to use ADP, adenosine diphosphate, with some inorganic phosphate you can make ATP. This process is called phosphorylation, and if this thing is happening in the presence of light or by the utilization of light, then you can say it as photophosphorylation. And a phosphorylation dita organelle re हुए कोठी ना गोटे ला plant cell रो chloroplast, plant and animal cell रो mitochondria रे मध्य हुए. माइटोकॉन्ड्रिया तार सिंगुलर है माइटोकॉन्ड्रियन. रेस्पिरेशन समय मध्य एटीपी बने. ठीक अच्छे. आ सहित कौन बने लाइट रिएक्शन रे एटीपी बने प्लस ता सहित कौन बने ना NADPH2 और यू कैन से NADPH प्लस H प्लस. H प्लस स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन और यू कैन से कॉमनली इट एज NADPH2. ଆଉ NADPH टा को फॉर्म रे यूज हुए ना as the reduced coenzyme. रिड्यूस कहीं होची ना प्रोटॉन को ये अब्जॉर्ब करची बोली सेठी तार रिडक्शन होची. तो रिडक्शन हे साला पर ताका हम कहबा रिड्यूस्ड कोएंजाइम. देन ये जो स्टेप सब हेतिला फोटोसिंथेसिस रो वेरियस स्टेप से स्टेप को किए ता ऊपर किए वर्क करथिले ना मन रखो. इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट. the workout done on देखो दी जन साइंटिस्ट का नाम आछि. गोटे है हिल जोटा तांको नाम आंसर आसला हिल रिएक्शन. रॉबर्ट हिल साइंटिस्ट थिले रॉबर्ट हिल. आ गोटे कौन ना ये जो फोटोकेमिकल फेज यानी कि लाइट रिएक्शन जो रहला ता ऊपर के वर्कआउट करथिले ना वर्कआउट बाय प्रोफेसर प्रोफेसर आर्नन. ओके अच्छा एबे हमें बुझिबा जे हिल रिएक्शन कौन. व्हाट इज हिल रिएक्शन. हिल रिएक्शन वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हिल. proposed by whom? Robert Hill. When the factual data से मन रखिबे 1937 before 10 years of our independence. ठीक अछि. आसे एक्सपेरिमेंटल करी कोन देखथिले ना he observed the what? He observed the photolysis of water. कौन से ऑब्जर्व करथिले ना photolysis, or you can say it is photo oxidation means splitting of water molecule and water molecule split किना कौन दउथिला ना 2H plus दउथिला plus half molecule of oxygen दउथिला plus आ कौन रिलीज होथिला ना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होथिला जोटा कि भरपाई करथिला फोटो सिस्टम 2 रे जो इलेक्ट्रॉन उडा ट्रांसफर हो जाउथिला. एंड ए सब होथिला कोठी ना इट इज अकरिंग एट फोटो सिस्टम 2. एंड से एक्सपेरिमेंट रे कोन नै थिले ना कि क्लोरोप्लास्ट आइसोलेटेड करके ना नै कि ताको पानी रे रखिथिले. इनिशियली से कोन करथिले गोटे बिकर बा कोनोसी कंटेनर रे नै थिले कोन ना सम आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट. देन आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट नेला पारे ताको कोन करथिले ना लाइट को एक्सपोज करथिले. जेतळे ताको लाइट को एक्सपोज कले लाइट को एक्सपोज कला पर कोन हला ना लाइट एनर्जी पड़ला पर से माने फोटोसिंथेसिस करथिले. देन द क्लोरोप्लास्ट विल प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज द प्रोडक्ट ऑफ
फोटोसिंथेसिस स्पेशली ऑक्सीजन प्रोडक्शन कथा ही से कही ऑक्सीजन बनले कौन हम ना ये सब ऑक्सीजन बबल्स गुड़ा सब बनला ऑक्सीजन बबल गुड़ा सब ऊपर बनिकिना डिपोजिट है देन ऑक्सीजन बबल बनला पर धीरे धीरे कौन होता ना यही क्लोरोप्लास्ट गुड़ा से मैंने भर बुयांसी आसी जाता बुयांसी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ फ्लोटिंग कैपेसिटी आसी जाता जहाँद्वारा कि से कौन होते ना सब ऊपर को उठी आसते है ऊपर को उठी आसिकिना ये सब सरफेस रे फ्लोट करते जोटा कि आप फास्ट एक्सपेरिमेंटल वीडियो रे देखिपारे आपण मैंने देखी दूसरी जे लीफ को कटा है कि केमती से वीडियोटा देखाई आप फास्ट वीडियो को देखना आप विषय में डिटेल्स देखिपारे देखो ये देखु आ से जो नहीं वाटर ना से एक्चुअली गोटे हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग कंपाउंड से ऐड करते एंड से गुड़ा कौन थी फेरिक सल्ट थिला है कि वाटर रे फेरिक सल्ट ऐड कराई एंड फेरिक सल्ट कौन गोटे ना हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग कंपाउंड देखो धीरे 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 ऑक्सीजन बनला भितर से धीरे धीरे बुयांसी भितर आसला एंड इट विल फ्लोट एंड देखि पारथि एटी पूरा ऊपर सब सर्कुलेट होइकिना रहिथिला लाइट प्रेजेंस रे एटा थिला हिल्स रिएक्शन ठीक अछि एबे आ गोटे पॉइंट कौन कहली ना से जो वाटर नहीं वाटर रे सॉल्ट बा किछि हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग सॉल्यूशन थिला हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग सॉल्यूशन कौन थिला बेटा ना हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग सॉल्यूशन जोटा थिला ता ना थिला फेरिक एसिड सॉरी फेरिक सॉल्ट नहीं आइथिला और यू कैन टेक द बेंजोक्विनोन मध्ये नहीं परिबो आ से बेंजोक्विनोन हो बा फेरिक एसिड हो से दी जन कोन ना दे आर हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग कंपाउंड ओके दे आर व्हाट हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग कंपाउंड्स आउ हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन द वाटर इज रिड्यूस्ड ये जो सब्सटेंस गुड़ा थिला ए मानकर कौन होइथिला ना रिडक्शन होइथिला रिडक्शन माने कौन ना वाटर मॉलिक्यूल तो स्प्लिट हेले देखु एटी दुटा हाइड्रोजन बनुची से हाइड्रोजन आ सहित रिएक्शन करथिला रिएक्शन कला माने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आमने जानछथि रिडक्शन तो ए मानकर हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग कंपाउंड मानकर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करी से मानकर रिडक्शन होइथिला तो ए सब से कौन करथिले ना हिल निज रिएक्शन रॉबर्ट हिल निज रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करथिले आ एक्सप्लेनेशन कौन से पाइथिले ना वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल दीटा जिनस मुख्यतः दरकार थिला ऑक्सीजन लिबरेशन होबा पई बा वाटर रो स्प्लिटिंग होबा पई बा वाटर रो फोटोलिसिस होबा पई कौन कौन से दीटा जिनस ना गोटेला लाइट आ गोटेला क्लोरोफिल आ कौन ना वाटर रे जो हाइड्रोजन रिलीज होतिला से कंबाइन करथिला हाइड्रोजन एक्सेप्टर सहित ताको रिड्यूस करिया पई आ से हाइड्रोजन एक्सेप्टर कंपाउंड किए थिले ना फेरिक सॉल्ट और बेंजोक्विनोन नहीं परिबा हमें अच्छा कंक्लूजन से कौन पहुंचते ना इन प्लांट्स सम अननोन हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर आल्सो देयर जेमिति कि आपण माने जानथिबे किछि रिड्यूस्ड कंपाउंड बनुची हाइड्रोजन एक्सेप्टर हिसाब रे कार्बन डाइऑक्साइड मध्ये नहीं परिबा कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करकिना बनुची आपनकर ग्लूकोज C6H12O6 जोटा कि गोटे रिड्यूस्ड कंपाउंड प्लांट रे एगुडा सब होची ठीक अछि तापर एबे हम डिटेल्स रे बुझिया जे एक्चुअली फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहला में कोन बुझिछे नॉर्मली आपण माने जदि देखबे ग्रीन प्लांट रे वाटर को यूज करा हुए गोटे हाइड्रोजन डोनर हिसाब रे हाइड्रोजन जोटा कि दरकार हुए कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करिया पई आ कार्बन डाइऑक्साइड रो रिडक्शन हेले कार्बोहाइड्रेट बनिबो आ वाटर हुए कौन हाइड्रोजन लॉस करियो माने ता निजर ऑक्सीडेशन हवा किंतु से ऑक्सीडेशन पई दरकार किए गोटे लाइट आ गोटेला क्लोरोफिल वाटर ऑक्सीडेशन हेले सेतरु रिलीज हवा हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन देन फोटोसिंथेसिस समय कौन हुए ना ग्रीन प्लांट ए ऑक्सीजन रिलीज करे आ से हाइड्रोजन को लेकिना कार्बन डाइऑक्साइड सहित अटैच करकिना कार्बोहाइड्रेट बनाए जेहेतु ये ऑक्सीजन को यूज करूची ए प्रकार फोटोसिंथेसिस को आम कौन कहि परबा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बुझियला आम आ कौन कहि परबा फोटोसिंथेसिस को ना ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस व्हाई बिकॉज द ऑक्सीजन इज रिलीजिंग फ्रॉम वाटर is liberating throughout the
photosynthesis or photolysis आ प्लांट रे NADP act as the coenzyme सी भी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे NADP कौन करे प्लांट रो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ना कौन बनाए ना बनाए NADPH और यू कैन से NADPH2 आ NADP कौन करे ना गोटे हाइड्रोजन एक्सेप्टर भलिया मध्य काम करे हैला तो जदि आमे देखिबा कोन ना गोटे प्लांट रे आमे कोन करबा ना सपोज आमे 4 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल नबा काहे कि 4 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल नोचे सेटा पर कहबी एबे बुझंतु जे सपोज आमे 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नबा 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले कोन रिलीज होबा ना 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मींस 4टा प्रोटॉन और 4टा इलेक्ट्रॉन रिलीज होबा आ तो सीधा कोन होबा ना दीटा वाटर मॉलिक्यूल सेमति नॉर्मली इनएक्ट रहइबा आ ऑक्सीजन देटा रहइबा तो आमे एते सब न करके ना 2H2 मध्ये नै परथांते दीटा H2 रु मध्ये ए सब हे परिबा ठीक अछि किंतु एडिशनली नोचे आमे 4टा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4टा वाटर मॉलिक्यूल नोचे कोन पई ना 4 हाइड्रोजन कांसेप्ट को बुझिया पई जे आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल से विषय में बुझिया कोन होचे ना दीटा सॉरी 4टा हाइड्रोजन जे कहा पाखे लागिवे ना दीटा NADP प्लस पाखरे NADP प्लस पाखरे 4टा हाइड्रोजन लगिवे प्लस 4टा इलेक्ट्रॉन लगिवे लागले कोन बनमियो ना 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH बनिबो और जोटा NADPH2 कहउचे आ NADP टा कोन ना हमर हाइड्रोजन एक्सेप्टर आ NADPH कोन ना NADPH होउचे रिड्यूस्ड हाइड्रोजन एक्सेप्ट कला पर ता रिडक्शन होबा सो नाउ इट विल बी कॉल्ड एज रिड्यूस्ड coenzyme NADPH2 or NADPH is called as reduced coenzyme आउ बाकी जो बळिला एटा दीटा H2O बळिला this 2 H2O is now again combining with 2 NADP का प्रेजेंस रे ना लाइट प्रेजेंस रे आउ क्लोरोफिल प्रेजेंस रे कंबाइन हेकिना पुणी फर्दर बनाए NADPH2 जदि ओवरऑल आमे सब देखिबा आउ से 2H2O रहिथिबा इनएक्ट एंड ऑक्सीजन लिबरेट हुए नॉर्मल ये जदि आमे रिडक्शन स्टेपटा देखिबा फोटोलिसिस वाटर रे कोन सब होउची हैला कि आ ता सहित किछि एडिशनल इंफॉर्मेशन शेयर करैक चाहिबी जे हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस के आमे पढिबा किछि एक्स्ट्रा जिंस पढिबा जे हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन फोटोसिंथेसिस मेनली हाइड्रोजन एक्सेप्टर आमे काहा को कंसीडर करछे ना लाइट रिएक्शन रे NADP लाइट रिएक्शन हैला NADP आ NADP रो फुल फॉर्म कोन निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट स्पेलिंग निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को सिंबॉलिकली मैं लिखि देजंती PO4 माइनस देन NADP को प्रीवियसली कहउतला कोन बा एंशिएंट बा ओल्ड नेम NADP रा कोन थिला ना आ ना थिला TPN दिस इज द ओल्ड नेम ऑफ NADP TPN रा फुल फॉर्म कोन थिला ना ट्राइफॉस्फोपाइरिडाइन न्यूक्लियोटाइड द फुल फॉर्म ऑफ TPN वाज ट्राइफॉस्फोपाइरिडाइन न्यूक्लियोटाइड आ NADP को मध्य कोएंजाइम कहउथिला और कोएंजाइम 2 मध्य कहउथिला हैला NADP को कोएंजाइम कहउथिला आ NADPH टा हला रिड्यूस्ड कोएंजाइम ठीक अछि आ केतेटा वाटर मॉलिक्यूल दरकार हुए सपोज वी वांट टू डिस्कस अबाउट हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू लिबरेट 6 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल केतेटा दरकार जदि 6टा ऑक्सीजन रिलीज हबा केतेटा दरकार हुए ना गोटे मॉलिक्यूल रो ऑक्सीजन रिलीज पई नॉर्मली 4टा वाटर मॉलिक्यूल रो फोटोलिसिस हबा दरकार आमे प्रीवियसली देखिले जे 4H2O मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू रिलीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ठीक से बड़ी 6टा ऑक्सीजन रिलीज हेले देखिना कोन हो हमरो गोटे ग्लूकोज बनिबो
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जदि आपनकर मन पड़थिबो सेठी देखिथिबा जे फोटोसिंथेसिस रो गोटे स्टेप कंप्लीट होला परे 6टा ऑक्सीजन रिलीज हेले जाय किना बा गोटे ग्लूकोज रिलीज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन समय से 6टा ऑक्सीजन रिलीज हो सारी है कि तो से क्वेश्चन पचार जे कौन केतेटा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दरकार हुए सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सॉरी केतेटा वाटर मॉलिक्यूल दरकार हुए हाउ मच वाटर मॉलिक्यूल आर नेसेसरी फॉर रिलीज ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन तो 4टा वाटर मॉलिक्यूल रे गोटे ऑक्सीजन रिलीज हम तो 6 हेले केते हम ना 6 into 4 that will be 24 water molecule are required to release 6 oxygen and जदि chemical representation आम देखा को लिखि परिबा ना 24 H2O molecule is required in the presence of light and chlorophyll to release 24 H plus plus 24 E minus यानी कि इलेक्ट्रॉन 24टा प्रोटॉन 24टा इलेक्ट्रॉन plus 12 H2O molecule will also be released along with the liberation of 6 O2 understood आउ ता सहित कौन हुए ना ए समय 12 NADP molecule मध्य तार रिडक्शन हुए केमिति ना बाय एक्सेप्टिंग 24 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करिवो माने प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करिवो एक्सेप्ट कर साला पर से कौन बन जिवो ना 12 molecule of NADPH2 ठीक अच्छे तो ओवरऑल जदि आम पुणी थर लिखा फाइनल प्रोसेस तो फाइनल प्रोसेस रे कौन हम ना 24 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 12 NADP in the presence of sunlight and chlorophyll gives rise to 12 molecule of NADPH2 or NADPH which NADPH or NADPH2 interchangeably मु यूज करुच्ची है कि कहीं आपड़ देखु NADPH जो बनूची ता सहित सब बारंबार कहूँ H प्लस आयन रोचे तो आपको कई ऑथर लिखती NADPH2 सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड विथ NADPH और NADPH2 अच्छा पुणी फेरी जा ता सहित कौन बनवा 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिस इज द ओवरऑल और लास्ट फेज ऑफ योर फोटोलिसिस ऑफ वाटर देन आउ कौन एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जानिबा ना सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस नॉर्मली कौन होता है ना ऑक्सीजन रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल रू आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा मन रखंतु जे गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले साइंटिस्ट दी जन साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट वाज कंडक्टिंग देयर एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस जे ऑक्सीजन टा एक्चुअली आसुच कोठो तो सेति पय से कोन करथिले ना ऑक्सीजन रो गोटे हेवी आइसोटोप नै थिले सेटा केते थिला ना ऑक्सीजन 18 एटा कोन ना हेवी आइसोटोप इट इज वन हेवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन to find the raw material and to trace the heavy isotope in the product obtained from the photosynthesis reaction आउ सेठी से कौन देखिथिले हाँ जे एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिटिंग हैला पारे कौन होथिला ना ऑक्सीजन रिलीज होथिला अच्छा आउ से को एक्सपेरिमेंटली की कंफर्म करथिले ना इट वाज कंफर्म्ड बाय टू साइंटिस्ट नेम्ड एज रूबेन एंड कैमेन जदि पचराब केबे ना 1941 experimentally they confirmed but oxygen is liberated in the photosynthesis due to the photolysis of water okay then next time पढ़िबा photolysis of water सरला light absorption तो फर्स्ट टर्म पढ़थिला एंटीना कॉम्प्लेक्स वगैरह रे एबे पढ़िबा कोन ना हमर photolysis समय रे आ कोन हैला ना ऑक्सीजन रो रिलीज मध्ये हम पढ़ि देले लिबरेशन और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एबे पढ़िबा एटीपी और एनएडीपी सिंथेसिस जोटा कि लिबरेशन ऑफ एटीपी सॉरी फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनएडीपीएस2 अब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम कौन कहि परिबा ना फोटोफॉस्फोराइलेशन स्पेशली जोटा कि क्लोरोप्लास्ट हुए ताको कहते फोटोफॉस्फोराइलेशन अच्छा if somebody will ask what is photophosphorylation then you can say the conversion of light energy to the chemical energy in the form of ATP is known as photophosphorylation and if the synthesis of ATP is requiring light energy then you can say also that type of phosphorylation as photophosphorylation
नॉर्मली कौन हुए ना एडीपी सहित गोटे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगे आउ एटीपी बने ताकू मध्य आउ आम कौन लिखिपर ना एडीपी प्लस H3PO4 ऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड लाइट प्रेजेंस रे क्लोरोफिल प्रेजेंस रे कौन बने एटीपी बने ठीक अच्छे देन synthesis of ATP by input of light energy is photophosphorylation you know very well then ये कौ समय बने लाइट रिएक्शन समय बने इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा मन रखी दियो आउ एटीपी कौन हुए लाइट रिएक्शन रे जहाँ बने बा ताको आम आउ कौन कह ना फोटोकेमिकल फेज रे जहाँ बने ताको नेक्स्ट फेज बा डार्क रिएक्शन रे सेटार यूटिलाइजेशन हुए है कि and it is utilized in dark reaction अच्छा देन नेक्स्ट आम पढ़ा गोटे कॉन्सेप्ट जे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो आम इलेक्ट्रॉनटा बने हाइड्रोजन बा वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग रे से स्प्लिटिंग हैला परे सेतरु इलेक्ट्रॉनटा केमिति ट्रांसफर है कि ना नॉर्मली तो आम मैंने जानते जेतु जेड स्कीम कथा जानते कि नहीं जे जदि आम जेड स्कीम देखा आपण मैंने देखे दूसरे एठारे नॉर्मली एठारे देखंतु फॉस्फोराइलेशन एक्चुअली फोटोफॉस्फोराइलेशन दी प्रकार होता है गोटे साइक्लिक आ गोटे नॉन साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एटा होची साइक्लिक दिस वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टू टाइप रो आ गोटे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन होची ना फास्ट लाइट एनर्जी आसी पड़िबो कोठी ना फोटोसिस्टम 2 रे लाइट एनर्जी पड़ला परे वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग हबो आपण देखंतु एठी लाइट एनर्जी पड़ला चारटा वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग हला परे दुईटा वाटर मॉलिक्यूल बनिबो दुईटा वाटर मॉलिक्यूल बन सरला परे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गोटे रिलीज हबो प्लस चारटा प्रोटॉन रिलीज हबो हैला कि गोटे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा पाई चारिटा वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग हवा दरकार अच्छा आउ आ सहित कौन रिलीज हम ना चारटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हम चारटा प्रोटॉन चारटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हम चारटा इलेक्ट्रॉन कौन हम ना फोटोसिस्टम 2 रे लाइट पड़ला परे दुईटा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकिना कौन हे ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जोटा कि फास्ट थी प्लास्टोक्विनल PQ स्टैंड्स फॉर प्लास्टोक्विनल सेठी जाइकिना से रिसीव हम रिसीवला परे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन गुड़ा ट्रांसपोर्ट होइजबे in the downhill movement pattern follow करिवे along their redox potential then सेठी प्लास्टोक्विनल पर पुणी धीरे धीरे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर हे आ से समय कोन बना बाहरु थाइलाकॉइड रो एटा हला भीतर साइड हला लुमेन साइड आ बाहर हला स्ट्रोमल साइड से स्ट्रोमल साइड रु बाहर जोटा रीजन अछि एटा थाय नॉर्मली स्ट्रोमल साइड आ एटा थाय कोन ना थाइलाकॉइड रो लुमेन तो से स्ट्रोमा रु लुमेन को एटी कौन हुए ना प्रोटॉन रो ट्रांसफर हुए प्रोटॉन ट्रांसफर हेले कौन हम ना एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिसिकिना एटीपी बनब एंड इनर साइड की बनीगले इनर साइड रे आहरी प्रोटॉन एंट्री हो देख आगु वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकिना प्रोटॉन थिला एबे स्ट्रोमाल रु प्रोटॉन पंप होकिना पुणी भीतर मध्य बा थाइलाकॉइड लुमेन रीजन आहरी प्रोटॉन डिपोजिट हो जिवो ए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स एई जगह रे नेक्स्ट साइटोक्रोम गोटेला B6 आ गोटेला साइटोक्रोम F सेठी इलेक्ट्रॉन आसला परे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कि प्लास्टोसियानिन ता पाखु इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम तापर जाइकिना से पहुँच कोठी ना फोटोसिस्टम 1 रे फोटोसिस्टम 1 रे पहुँचला परे सेठी पुणी रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड हम एक्साइटेड होला परे इलेक्ट्रॉन को पुणी रिलीज करबो एंड सेठी एक्सेप्टर थिबो FRS बा फेरोडॉक्सिन जोटा कहते तो फेरोडॉक्सिन सेठी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिवो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कला परे नेक्स्ट ट्रांसफर कोठी ना FRC को ट्रांसफर करेबा माने फेरोडॉक्सिन रिडक्शन कॉम्प्लेक्स सेठी को ट्रांसफर कला परे से कौन करबा ना NADP को कन्वर्ट करेबा NADPH रे ठीक अच्छे एंड एठी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकिना ऊपर को प्लास्टोक्विनल ताको रिसीव करबा एठी वैकेंट रहबा ग्राउंड स्टेट नॉर्मल रहबा एंड से इलेक्ट्रॉन को भरपाई करबा के वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिटिंग रो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होइतबा से इलेक्ट्रॉन जाइकिना एठी फोटोसिस्टम 2 रे पुनी ताको रिसाइकल करबा ये रिसाइकल तो करेला बट धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन होची ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ट्रांसफर होची आ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन हुए ना ओनली फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व थाए फोटोसिस्टम 1 रे 700 नैनोमीटर जोटा थाए एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा
एंड सेठी इलेक्ट्रॉन कौन हुए ना एक्साइटेड होकिना तार ग्राउंड स्टेट रु एक्साइटेड स्टेट पहुँचो एंड सेठी आयरन सल्फेट गोटे कम्प्लेक्स अच्छी जी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट कलापर धीरे धीरे साइटोक्रोम बी को दब जोटा ये आम देखते साइटोक्रोम बी देन प्लास्टोक्विनन रिसीव कलापर फाइनाली कौन कर ना सेठी गोटे एटीपी बनब आउे कौन हम ना साइटोक्रोम एफ को पुणी से सेंड कर इलेक्ट्रॉन पुणी साइटोक्रोम एफ रु पुणी आसो प्लास्टोसियानिन पुणी आसो फोटोसिस्टम 1 को रिटर्न कर आउ से फोटोसिस्टम 2 को जापरिबनी तो ये जो प्रोसेस हुए यहाँ नॉर्मल हुए कौटी ना जो जगह खाली फोटोसिस्टम 1 थाए मु इनिशियली क्लास रे कहथि प्रीवियस क्लास रे जे आमे जदि क्लोरोप्लास्ट देखिबा टू टाइप रो फोटोसिस्टम देखा जाए गोटे ला फोटोसिस्टम 1 गोटे ला फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 कोठी प्रेजेंट थाए ना जो जगहटा नॉन कंप्रेस्ड थाए जेमिति कि हमर थाइला स्ट्रोमाल लामेल आ थाइलाकॉइड रो जो जगहटा कंप्रेस हे नथिबा ए वाला जगह कोन थिबा ना PS1 एठी भी थिबा PS1 बट जो जगह कंप्रेस हेकिना थिबा सेठी थिबा PS2 आ से PS2 और PS1 जोटी पाखापाखि थिबे सेठी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुए आ जो जगह PS1 थिबा सेठी कोन हबा ना ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हबा ठीक अछि आ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रे NADPH2 बनेनी बा जो कोएंजाइम बनेनी रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनेनी खाली एटीपी बने किंतु नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कोन बने एटीपी बने प्लस ता सहित NADPH2 बने ए सब थिला कोन ना दीटा टाइप रो फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक किंतु आमर डिटेल्स बुझी अछि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होची से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट ए विषय डिटेल्स हमको बुझीबार अछि आपण माने एनिमेशन मते देखंतु एठरे कोन अछि ना फोटोसिस्टम 2 देखंतु इलेक्ट्रॉन डा एई पाथ देकिना ट्रांसफर हेकिना जाउची एटी साइटोक्रोम B6X कॉम्प्लेक्स रहला एटी प्रोटॉन बाहर देखो भीतर को ट्रांसफर हेकिना आसुथिबो धीरे धीरे थाइलाकॉइड रो ल्यूमेन साइड रे प्रोटोन डिपोजिशन थाइलाकॉइड स्पेस जोटा लिखा है जे ल्यूमेन साइड रे धीरे धीरे कोन होथो ना प्रोटोन डिपोजिशन बा कंसंट्रेशन बढ़ुथिबो आ कोन होथिबो ना बाहर प्रोटोन रो जोड़ा अछि बा स्ट्रोमा साइड रे सी मध्ये पंप होई आसथिबो को बटे ना ई साइटोक्रोम देखिना पंप होई के आसथिबो आउ धीरे धीरे एठी कोन होछि ना प्रोटोन गुडा एठी रिलीज होछि आ एठी कोन होछि ना एठी मध्ये NADP प्लस रु NADPH बनुछि तान एठी हाइड्रोजन रो यूटिलाइजेशन मध्ये होछि बा H+ आयन रो यूटिलाइजेशन होछि तो एठी हम तीनटा केस देखुछे कोन देखुछे ना गोटे केस देखुछे जे आमरा हाइड्रोजन रो कंसंट्रेशन मूवमेंट फल रे बा हाइड्रोजन रो कंसंट्रेशन फास्ट डिफरेंस क्रिएट हुए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपेंस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन differs in two both side one is from stroma side another one is from thylakoid side generally the concentration of H+ ion remains high in stromal side thylakoid lumen side but the concentration of H+ ion remains very low in stromal side तो higher or lower concentration हेले सेठी कोन हबो ना concentration difference create हबो बा प्रोटॉन ग्रेडिएंट फॉर्मेशन हम प्रोटॉन ग्रेडिएंट फॉर्मेशन तीनटा कज रे हुए कौन ना फास्ट कज है आमको कौन भी उपाय रे हाइड्रोजन रो कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करार अच्छी गोटे पटे अधिक आ गोटे पटे कम जो पटे अधिक हो ये पोटेंशियल डिफरेंस H+ आयन कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गले धीरे धीरे प्रोटॉन ग्रेडिएंट फॉर्मेशन हम तो तीनटा मेन कज अच्छी ये कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होबा फास्ट कौन ना फास्ट है आपण वाटर मॉलिक्यूलर स्प्लिट हेले जो थाइलाकॉइड रो ल्यूमेन साइड रे कंसंट्रेशन बेसी कोन हबो ना H+ आयन बढ़िबो आउ कोन हुए ना ये जो साइटोक्रोम B6F देखुछंती सेठी मध्ये प्रोटॉन पंप हुए तो सेठी प्रोटॉन रो पंप हेले कोन हबो ना पूनी कंसंट्रेशन H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़िबो एटाला सेकंड केस आ थर्ड केस कोन ना स्ट्रोमाल साइड रे थाए फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जे कि कोन करे ना NADP को रिड्यूस करके NADPH रे कन्वर्ट करे रिडक्शन माने सेठी हाइड्रोजन एडिशन हम तो हाइड्रोजन एटी यूटिलाइजेशन होची स्ट्रोमाल साइड रे तो थर्ड कंडीशन होची एटा जेठी कोन होची ना H+ आयन रो एडिशन हेकिना एठी तार डिक्रीज होची तो स्ट्रोमाल साइड रे गोटे कंडीशन रे H+ आयन कम होची बट थाइलाकॉइड ल्यूमेन साइड रे दीटा कंडीशन जोगु H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होची आ एई दीटा प्रोसेस कोन करंती ना H+ आयन कंसंट्रेशन रे डिफरेंस क्रिएट करंती जा द्वारा कि थाइलाकॉइड साइड रे H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ी थाए आ स्ट्रोमाल साइड रे H+ आयन कंसंट्रेशन कमी थाए धीरे धीरे एई भली भाबरे प्रोटॉन ग्रेडिएंट फॉर्मेशन हुए आ प्रोटॉन जेतले थाइलाकॉइड ल्यूमेन भरि जाए से माने गोटे एटीपी सिंथेज बोली गोटे थाए कॉम्प्लेक्स से एटीपी सिंथेज देकिना बाहर को ट्रांसफर करकिना
स्ट्रोमा साइड को चली जाती थाइलाकॉइड लुमेन रु स्ट्रोमा साइड को चली जाती आउ ये जो मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रे गोटे माने से एटीपी सिंथेज रो चैनल थाए प्रोटीन चैनल थाए जोटा को एफओ पार्टिकल कहते आउ बाहर जोटा हेड रीजन देखुं सेटा कहते F1 पार्टिकल ये दीटा को मिसेकिना कॉमनली कहते FO या F0 या F0 F1 पार्टिकल तो ये पार्टिकल गुड़ा मिसिकिना कौन करती F1 FO पार्टिकल एटीपेज बा एंजाइम को हेल्प करती एटीपी बनवाई एस प्लस आयन पंप है माने सेठी कौन हम एटीपी फॉर्मेशन हम आप देखी पारे एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिसिकिना ये एटीपी बनुची ठीक अच्छे स्टार शेप्ड क्लियर आई हैव दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू रिगार्डिंग टू द फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ये मेन है लाइट रिएक्शन बा लाइट प्रेजेंस रे एगुड़ा सब होची आ फॉस्फोराइलेशन माने एटीपी फॉर्मेशन होची आ इलेक्ट्रॉन गार्डियन सिस्टम रे बा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंसंट्रेशन में किसी डिफरेंस क्रिएट होची जोटा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन करूची आ कोन हुए ना हमर एठी एबे डिटेल्स बुझिबा जे ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कोन ठीक अछि आ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखिए फर्स्ट व्हाट इज ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज्ञा दीटा जगह देखा जाए कौटी गोटे आम क्लोरोप्लास्ट रे आ गोटे देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया रे किंतु एठी हमें पढ़छे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन क्लोरोप्लास्ट आउ एटा कोठी लोकेटेड थाए जदि पचारिबे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लोकेशन थाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो इन द ग्राना और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है कि it is present in the thylakoid membrane or located in the grana lamellae. Then what are the components of this electron transport system or electron transport chain? कौन थाए ना बहुत गुड़े थाए को एंजाइम्स गुड़ा थाए कौन ना गोटे थाए प्लास्टोक्विनन जे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कर पारथिबा बा प्रोटॉन एक्सेप्टर कर पारथिबा PQ stands for what plastoquinone PQ stands for plastoquinone and what is its role as hydrogen acceptor act as or hydrogen carrier proton carrier as well as electron acceptor आ कौन नेक्स्ट आ गोटे कौन जाए अच्छी साइटोक्रोम B6 साइट B6 सी कौन करे ना ये आक्ट एज द इलेक्ट्रॉन कैरियर आ गोटे अच्छी साइटोक्रोम F सी कौन करे सी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हिसाब से आक्ट करे आ गोटे अच्छी प्लास्टोसियानिन सी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर हिसाब से काम करे सो दीज थ्री कंपोनेंट्स आर आक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर व्हेयर एज द प्लास्टोक्विनोन आक्ट एज हाइड्रोजन कैरियर H carrier electron and this one is H plus यानी proton या hydrogen carrier and in photosynthetic unit this electron transport system helps to connect both photosystem 2 and photosystem 1 ठीक अच्छे अच्छा this arrangement of a component in a series facilitates light induced electron flow during light reaction most important step what is it they induces the light or they helps in light induced electron flow this is the most important function and cytochrome B6 as well as cytochrome F form non pigmented electron carrier complex this cytochrome B6 and cytochrome F they forms what they forms cytochrome B6X complex जोटा कि non pigmented electron carrier complex this is non pigmented electron carrier complex अच्छा तो ये कंपोनेंट मानकर सीक्वेंस को भाया थाए फास्ट रहा आपंकर फोटोसिस्टम 2 इनिशियली फोटोसिस्टम 2 रु धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन आसो कोठी ना प्लास्टोक्विनोन आसो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट आसो प्लास्टोसियानिन एंड फाइनली फोटोसिस्टम 1 रे जाकिना एंट्री करबा सॉरी एटा 1 फोटोसिस्टम 1 रे जाकिना
एंट्री करवा आ प्लास्टोक्विनोन जोटा act as the mobile hydrogen carrier. This one is the hydrogen carrier, but it is what? Mobile hydrogen carrier. और कई क्या को subtle मध्य कहते in between photosystem 2 and cytochrome B6F complex. दी जन का मध्य में देटा subtle भली काम करे. आउ प्लास्टोसियानिन act as the mobile electron carrier और ताको subtle मध्य कहते जोटा कि कहा भीतर रहबा ना cytochrome B6F and photosystem 1 मध्य रे. ठीक अच्छे आपको कहते कौन कैरियर और सटल मध्य कहि परिबा आपण ये मध्य कैरियर और यू कैन से इट एज सटल. देन प्रोफेसर आर्नोन said what that electron flow may be non cyclic or cyclic. जो आपण पढ़िथिले फोटोफॉस्फोराइलेशन जोटा टू टाइप रो कोन थिला कोटे थिला cyclic excuse me, another one is non cyclic. ए दिटा विषय थॉट के देथिले या प्रोफेसर आर्नोन. हु इज ही? प्रोफेसर आर्नोन, मोस्ट इंपोर्टेंट एमिनेंट पर्सन. नेक्स्ट एबे हमें पढ़िबा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सिग्निफिकेंस सेमती नॉर्मली जब डिस्क्रिप्टिव किसी क्वेश्चन आसे से भाया दरकार हम ना सिग्निफिकेंस से भाई किसी इंपोर्टेंस ना. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रो सिग्निफिकेंस मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस होची H प्लस बा प्रोटॉन ग्रेडिएंट फॉर्मेशन करबा एंड इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द कन्वर्सन ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ATP. आप मैंने देखी ना जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स देखना कौन होता ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करथिला. एटी आपण देखिबे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देखिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करछि प्लास्टोक्विनोन टू प्लास्टोसियानिन. सेठी हाइड्रोजन गोटे कोन होबा ना ट्रांसपोर्ट हेकिना ए जरिया रे भितर आसीबो हैला. देखि पारथो एटी गोटे H प्लस बा हाइड्रोजन एटी देखंतु गोटे पास करकिना आसीछि ए पास देकिना हैला. तो से गोटे कोन करे ना मेन ड्राइविंग फोर्स हिसाब रे काम करे. ठीक अछि के ना इलेक्ट्रॉन चेन एंड एथि पई कहया को केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. ठीक अच्छे आगे कौन कहते ना केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहीं कहूँ ना इलेक्ट्रॉन बा प्रोटॉन ग्रेडिएंट फॉर्मेशन है कि ना जदि एटीपी फॉर्मेशन हो पारुची ताको हम कहि परबा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. ठीक अच्छे. अच्छा जोटा कि आम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को जदि हम टिके आम डिटेल्स रे बुझिबा साइक्लिक नॉन साइक्लिक. ऑलरेडी तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक विषय आपण माने कहि सालेनी. एबे आम देखिबा कोन ना टिके डिटेल्स थ्योरी टिके पढि नबा जे नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रो कोन सब इंपोर्टेंट पॉइंट सब आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दरकार. ठीक अच्छे एबे टिके जस्ट देखिबा फास्ट देखिबा नॉन साइक्लिक जो प्रोफेसर आर्नोन कहिथिले जे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रे फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन सब इंपोर्टेंट पॉइंट सब आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दरकार. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हाट आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स एंड आके भी जेट स्कीम बोली भी कहती है कि अच्छा नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन इट इंक्लूड्स बेटा two type of photosystem. What are these? One is photosystem 1 and photosystem 2. But photosystem is the what the activity starts at photosystem 1 and ends at photosystem 2. Sorry, starts at photosystem 2 and ends at photosystem 1. ताले उल्टा पल्टा काहे दिया ना आग डिस्कवरी कराइथिला photosystem 1 पर डिस्कवर कराइथिला photosystem 2. एक्चुअली फोटोसिस्टम 1 टा नॉन कंप्रेस्ड बा नॉन अप्रेस्ड जोन रे देखा जाए. जो जगहटा टिके कंप्रेस हेकिना नथिबो थाइलाकड बा सेही रीजन रे देखा जाए. किंतु जो जगहटा कंप्रेस हेकिना थिबो सेठी फोटोसिस्टम 2 देखा दिबो हैला कि. अच्छा या परे आ कोन ना दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट. व्हाट इज इट? इट इज कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट. हाइलाइटेड पॉइंट्स कोन ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसीजर. ठीक अच्छे. नेक्स्ट आ कौन अच्छी ना इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अवेलेबल थ्रू द फोटो एक्साइटेशन ऑफ द रिएक्शन सेंटर दैट इज क्लोरोफिल A of photosystem 1 and 2.
एठी नॉर्मली कौन हुए आउ कौन हुए ना फोटो एक्साइटेशन हुए आ फोटो एक्साइटेशन हेले एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए electrons with which are energy rich they are released electrons or energy rich electrons released. Okay, then photo excitation or you can say photo induced how kon it हुए ना here also ATP synthesis occurs ATP as well as NADPH synthesis हुए कोथरे ना non cyclic photophosphorylation रे and it is also known as Z scheme आपको आउरी कौन कहती जेड स्कीम भी कहती कारण आप देखते फोटो सिस्टम 2 रु ऊपर को जाउथिबो प्लास्टोक्विनन पाखको देन पुणी आसुथिबो प्लास्टो साइटोक्रोम प्लास्टोसियानिन हेकिना फोटो सिस्टम 1 पाखको एंड पुणी आथिबो फेरोडक्सिन पाखको तो ये गोटे हेलानी ओवरऑल जेड स्कीम ताको जेड स्कीम मध्य कहती आ कोन ना एटीपी और एनएडीपीएस टू बने एज एसिलेटेड पावर ता सहित मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग at the base of photosystem 2 बा photosystem 2 रे कौन हुए ना photolysis of water हुए photolysis माने breakdown of water molecule हुए जोतिर को कौन रिलीज हुए ऑक्सीजन रिलीज हुए आ मन रखंतु चारिटा वाटर मॉलिक्यूल दरकार हुए गोटे ऑक्सीजन रो रिलीज होबा पई आ थ्रू आउट द प्रोसेस केतरा वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर होथिबो ना 24 वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर होथिबो 6टा ऑक्सीजन रिलीज होबा पई ता सहित आडिशनाली बन जाऊ वाटर से को जमती कि 4टा वाटर मॉलिक्यूल दरकार हो गोटे ऑक्सीजन आ 2टा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो तो अल्टीमेटली एठी तार 6 टाइम्स जो दरकार हो 6 टाइम्स जो दरकार है 24 वाटर मॉलिक्यूल लगला तो ऑब्वियसली एठी तार 6 टाइम यानी कि 12टा वाटर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा बनू ठीक अच्छे। अच्छा आउ कौन कौन ना यहाँ कौटी देखा जाए इट अकर्स एट द और साइड जदि पचरा हुए means occurrence position site is grana or you can say thylakoid membrane बारंबार एगुड़ा कह सारे it occurs in grana or thylakoid membrane then it is the major pathway for photochemical phase of photochemical light reaction it's enough. अच्छा एथि सहित आम मैंने कम्प्लीट कर कौन ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तापर एबे पढ़ा कौन ना व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन हुए ना तार हाइलाइट्स गुड़ा नेक्स्ट पेज रे लिखिदेबा जो कि खाली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हुए है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन cyclic photophosphorylation रे कौन हुए ना only who remains associated with only photosystem 1 remains included for this then आउ ए photosystem 1 plus आउ कौन थिबा ना हमर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थिबा एतिकी ठीक अछि आ सेठी कौन थिबा ना photosystem 2 थिबा photosystem 1 थिबा प्लस ता सहित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जोटा कि हेल्प करियो 2 रु 1 पई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 रु 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होबा पई नेक्स्ट आ कोन हुए ना ए टोटल ए जोटा रहला ए कोन ना दिस प्रोसेस इज आल्सो टोटली लाइट डिपेंडेंट इट इज आल्सो लाइट डिपेंडेंट। अच्छा आ कोन ना एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन are made available through the photo excitation of the reaction center at P700 obviously anchor reaction center रे chlorophyll जोटा रहिथिबो तार P700 थिबो absorption maxima थिबो then electron movement occurs due to photo induced or photo induction or excitation causes what electrons to move मीन्स एक्साइटेड होथिबा एंड ताको भरपाई करबा पई पूर्ण से निजे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नेकिना बुन बुलिकिना आसुथिबा हैला कि
and ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ATP synthesis also occurs, but no NADPH formation occurs. Only ATP synthesis occurs, no NADPH formation occurs at here. How it कोट होता है? It also occurs in thylakoid membrane, or you can say it occurs in grana, which is the site of occurrence. Site means jaga, or you can say grana, not double N, it's single N, or thylakoid membrane. It here operate हुए thylakoid membrane. आप दीटा कंडीशन अच्छी, मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन. व्हाट आर द टू इंपोर्टेंट कंडीशन फॉर सच प्रोसेस ना? कंडीशन 1 होची इफ द फोटोसिस्टम 2 इज ब्लॉक्ड. टू कंडीशन, जदि फोटोसिस्टम 2 कौन थी ना इफ if the photosystem 2 is blocked by any of the internal factor, or the light of wavelength is longer than 680. if or the life जदि lambda बा जोटा के wavelength कहूचे it is longer than 680, then we can say that the photosystem 2 at photosystem 1 the cyclic photophosphorylation occurs. Okay, these are the two important situation or two important condition which must be maintained to conduct the cyclic photophosphorylation. आउ एठी कौन हुए, कौन कहते कौन हुए नहीं? गोटे तो है एटीपी सिंथेसिस है, आ कौन कौन हुए नहीं? दीटा जिनस ये हुए नहीं. कौन हुए नहीं ना आम पढ़ते से जे ऑक्सीजन लिबरेशन, जोटा कि ऑक्सीजन लिबरेशन एट हुए नहीं. आ ता सहित कौन हुए नहीं ना NADPH भी फॉर्मेशन हुए नहीं. NADPH2 और NADPH फॉर्मेशन मध्य एठी हुए नहीं. ठीक अच्छे, बस एतिकी. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या भीतर हुए? फोटोसिस्टम 1 और 2 भीतर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंपोनेंट गुड़ा थाए ना प्लास्टोक्विनोन थी, साइटोक्रोम F थी, आ साइटोक्रोम B6 थी, आ प्लास्टोसिएनिन थी. बस आउ फेरोडक्सिन थी, बट फेरोडक्सिन रु आपण माने जदि देखिबे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डायग्रामटा, फेरोडक्सिन रु बस जस्ट खाली एठी कोन ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जोटा रहला एठी फेरोडक्सिन थी. आ से फेरोडक्सिन टा कौन करिवो ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिवो फोटोसिस्टम 1 रु एक्सेप्ट करके ताको पठै देबो कोठी ना आर जो इनिशियल एक्सेप्टर थिला कि ना आपण मानकर प्लास्टोक्विनोन, से प्लास्टोक्विनोन पाखकु पठै देबा. देन तापर साइटोक्रोम B6F पाखकु पठै देबा. साइटोक्रोम B6 देन साइटोक्रोम 6 पाखकु आसीबो. फाइनली पहुंची आसी प्लास्टोसिएनिन. आ से प्लास्टोसिएनिन कोन करिवो ना फोटोसिस्टम 1 पाखकु पुणी रिटर्न कर देबो काकु ना हमर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देबो. आ से समय दीटा एटीपी बने. देखो एटी गोटे एटीपी बनूँ, एटी गोटे एटीपी बनूँ. ठीक अच्छे, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स जदि पचरा साइक्लिक प्रोसेस रो प्रोडक्ट कौन रहा, आउ नॉन साइक्लिक प्रोसेस रो प्रोडक्ट कौन रहा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन कौन प्रोडक्ट बनूला? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रे आपनकर एटीपी बनूला, ऑक्सीजन रिलीज होता, NADPH2 फॉर्मेशन होता. आउ आपनकर जेतेबेले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ओनली ATP प्रोडक्शन इज अकरिंग एट हियर. तापरे आमर बुझिबार अछि गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेटा कोन ना केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. व्हाट इज दैट? इट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट. कौन से भी इंटरव्यू गले मध्य ए क्वेश्चन पचारिबे, व्हाट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? And who proposed this chemiosmotic hypothesis? Now it was proposed by Peter Mitchell. It is proposed by Peter Mitchell, or you can say Peter Michael, but it will be much more pronounced that Peter Mitchell in 1961. कौन से देथिले ना chemiosmotic hypothesis. आ से इनिशियली ए कॉन्सेप्ट देथिले कोन पाई ना माइटोकॉन्ड्रिया रे एटीपी केमती फॉर्मेशन होची से कॉन्सेप्ट को बुझिया पाई.
आउ माइटोकॉन्ड्रिया जो एटी फॉर्मेशन हुए बेटा से हुए आमर से फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस रे बट सेठी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुए फॉस्फोराइलेशन टू टाइप रो आम माने एजे पढ़ी आछे कोन ना फोटोफॉस्फोराइलेशन आउ फोटोफॉस्फोराइलेशन बट माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया हुए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कारण ऑक्सीजन प्रेजेंस रे सेडा हुए फॉस्फोराइलेशन। अच्छा आउ पीटर मिचेल कहा पर काम करथिले ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विषय काम करथिले जे केमिति एटी फॉर्मेशन होउची आ पर से कोन हेले ना ताकू इक्वली अप्लाई कले जे फोटो फॉस्फोराइलेशन जोटा कि क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन केमिति होची से विषय से कांसेप्ट को बुझिया पई। एंड व्हाट आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर ना first point is according to understand the photophosphorylation as per chemiosmotic hypothesis the first point you need to understand that the thylakoid membrane which is present in grana lamellae possesses three kinds of flow. How many kinds of flow? Here beta three kinds of flow occurs where now in the electron transport chain or you can say in the thylakoid membrane कौन कौन से तीनटा फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आउ कौन हुए ना प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन थर्ड रे कौन हुए ना एटीपी सिंथेसिस ठीक अच्छे आउ एटीपी सिंथेसिस कोट हुए ना अपन जो F1 FO पार्टिकल रहिला से F1 पार्टिकल ऑफ द एटीपेज कॉम्प्लेक्स रे हुए अपन जोटा F1 बा FO F1 पार्टिकल कहउछे बा नॉट F1 पार्टिकल कहउछे बा F1 FO पार्टिकल को भाई कहि परिबा से F1 पार्टिकल आपनकर हेड रीजन थिला सेठी कोन बने एटीपी बने थाए ठीक अछि। आउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एटीपी फॉर्मेशन दे आर कपल्ड थ्रू प्रोटॉन ट्रांसलोकेशन को आ भी कौन कहि परिबा हमें ना प्रोटॉन ग्रेडिएंट मध्ये कहि परिबा प्रोटॉन ग्रेडिएंट। आउ कोएंजाइम प्लास्टोक्विनोन कहा ता काम कौन थाए ना इट एक्ट एज द मोबाइल हाइड्रोजन कैरियर or shuttle between photosystem 2 and cytochrome B6X complex and this plastoquinone act as the main role for the proton transport across the thylakoid membrane कारण से proton accept कॉलेज से ना जाई दबो then during the movement of electron in the photophosphorylation the plastoquinone receives 2 electron आपण माने जदी एठी देखिबे ए डायग्राम टा को भलो से देखंतु आराम से मन रहि जो सब किछि आग कौन है ना प्लास्टोक्विनोन H+ को एक्सेप्ट कर माने ऑब्वियसली समय दुटा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर जितना प्रोटॉन एक्सेप्ट करे सेतरा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर कोठू ना फोटो सिस्टम 2 रु रिसीव कला पर धीरे धीरे आगु जगह साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स देकिना ट्रांसपोर्ट होतो से समय हाइड्रोजन को भीतर को छाड़ देबा नॉर्मली तीनटा कंडीशन मु बुझेछि भलो भाबरे जे एई साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स रे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़े थाइलाकॉइड रे लुमेन साइड रे आ बाहर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कमे प्रोटॉन रो ग्रेडिएंट फॉर्मेशन हुए है कि एंड अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडिएंट एक्ट एज द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर द कन्वर्सन ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म द ATP। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रो मेन कांसेप्ट कोन ना द प्रोटॉन ग्रेडिएंट is the main driving force for what for the conversion of ADP and inorganic phosphate into ATP. This is the main concept of chemoosmotic theory, and in the presence of one enzyme known as ATPase, and ATPase has two parts.
one is FO and F1 part. FO part remains embedded in the lumen of thylakoid and F1 particle faces towards the stromal side. Stromal side आपण जदि देखिबे एठी जे F1 FO पार्टिकल टा रहिला एम्बेडेड हे किना प्रोटॉन चैनल हिसाब रे काम करिवो धीरे धीरे तार कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आसीबो आ F1 पार्टिकल रहइबो कोपट साइड के फेस करकिना ना आपनकर टुवर्ड द स्ट्रोमल साइड ठीक अछि नेक्स्ट ए सब थिला कोन ना केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रो इंपोर्टेंस एबे हम पढिबा कोन ना किजे कंपैरिजन पढिबा हैला कि जे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक नॉन साइक्लिक रो बस किसी सिग्निफिकेंस अपन देखिबा ए लाइट रिएक्शन इज एसेंशियल फॉर द डार्क रिएक्शन मींस द फोटोसिंथेसिस जे से ना साइक्लिक होबा नॉन साइक्लिक हो सेतिर एटीपी बनुची और हमर एनएडीपी बनुची जोटा कि असिमिलेटेड प्रोडक्ट और यू कैन से इट इज द रिड्यूसिंग पावर and it helps in for the second phase of our photosynthesis that are the biosynthetic phase or dark phase which we are going to learn in the next class. It is what? It is the phase 2 which you can say it has the dark reaction. Actually it is the light independent phase or you can say it has the biosynthetic phase. First आथिला photosynthetic एटा कोन हैला ना biosynthetic phase of photophosphorylation sorry photosynthesis जोटा कि हमें नेक्स्ट क्लास रे स्टार्ट करबा और डार्क रिएक्शन रे बहुत गुड अछि आपण पढिबे व्हाट आर द डाइवर्सिटी इन photosynthetic pathway पढिबा हम सेथिरे C3 pathway C4 pathway ता सहित आपण देखिबे CAM pathway क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे जाको कहंती ता सहित आ कोन पढिबा ना किछि डिफरेंस पढिबा जे हमर C4 प्लांट आ C3 प्लांट भितरे ता सहित C4 प्लांट आ हमर काम्प प्लांट यानी कि क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट जे माने कि CM पाथवे बा क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथ को फॉलो करंती स्पेशली से माने क्रासुलासी फैमिली बा काक्टासी फैमिली रही थांती काक्टस आपण जानिथिबे जे कंटा जातीय गछ फाइनली सेडा सरला परे आमे पढिबा फोटोफॉस्फोराइलेशन तो एथिरा में कोन पढिबा ना किछि इवोल्यूशन विषय पढिबा और यू कैन से टाइप ऑफ द डार्क रिएक्शन गोटे पढिबा C3 आ गोटे पढिबा C4 आ गोटे पढिबा काम साइकिल हैला कि नेक्स्ट क्लास रे ए विषय डिस्कशन करिबा तो टिल देन एंड ए सब सरला परे we have to discuss about photo respiration और ता मझिर मझिर जदि हम मु फोटो रेस्पिरेशन विषय मध्य कहबी आपण मान तो रेस्पिरेशन विषय जानथिबे बट फोटो रेस्पिरेशन कोन ए विषय मध्य जणैबा आ C3 C4 काम पाथवे कोन डिफरेंट टाइप ऑफ डार्क रिएक्शन ए विषय मध्य जानबा आ डार्क रिएक्शन तीनटा फेज कहिथिले आपन को नॉर्मली C3 कथा जदि पडिबो C3 केस रे सेडा एप्लीकेबल कोन ना गोटे हला कोन ना कार्बोक्सिलेशन पर आसीबो रिडक्शन एंड फाइनली रिडक्शन पर आसीबो रिजेनरेशन मन पड़ुची स्टोरी जे फास्ट कोन हबो ना झियो घर वाला जेतबे देखिबे तांको गाडिया रे बाण फाण पड़ी नष्ट हो गलानी सेतबे से माने कोन करबे ना कांदीबे रुसिबे बा रियूड हेबे एंड पर पुनी निज मन को बधे कि रिजेनरेट माने पुनी आथरे रिसाइकल करने में निज को ए सब स्टेप थिला कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन एंड regeneration. अच्छा. So till then, keep learning, stay blessed, have a nice day, and if you like the video, keep supporting by doing like, share and comment. Thank you. Have a nice day.